Hello everyone. So today we are starting a new chapter, foreign exchange rate. By the name only, it is clear foreign exchange rate means first you understand meaning of foreign exchange. Foreign exchange means foreign currency like dollar, pound, euro, cents. These all are the currency of foreign country. So whatever foreign currency is there, that is called foreign exchange. And foreign exchange rate means the rate at which we are giving our currency to purchase one currency of other country. Like example, if you want to purchase $1, so to purchase $1, you are giving, suppose assuming figure 70 rupees you are giving to purchase $1. So when we are purchasing other currency and we are giving our currency, so that rate is called as foreign exchange rate. The foreign exchange rate means the rate at which domestic currency can be exchanged for the foreign currency. Clear that thing? Now what is foreign exchange and what is foreign exchange rate? Meaning both is clear? Okay. So as in your book also it is mentioned, foreign exchange refers to foreign currency. Foreign currency means different currencies of different nations. The stock of foreign exchange with a country refers to stock of all foreign currency with the RBI. As in banking chapter I had already explained you that government is having 85 crore rupees foreign currency of other nation. So that stock is called foreign currencies stock, that is with the RBI only. The standard practice is to measure the entire stock in terms of US dollar by converting the value of all currency into US dollar. So main measurement क्या है, हर country को अपनी currency US dollar से measure करनी पड़ती है because US is the developed nation. सो दैट कंट्री के अकॉर्डिंग ही हम अपनी करेंसीज को मेजर करते हैं और अपनी जीडीपी चेक करते हैं और अपना लेवल चेक करते हैं whether our GDP is increasing, whether our country growth is having or not. So due to that, whatever currency we are having with the other nations, so all that currency first converted into US dollar and then we are measuring that this much currency we are having for the other nation according to US dollar. So that is the stock, that stock is with the RBI only. So the definition is the rate at which domestic currency can be exchanged for the foreign currency is called foreign exchange rate. So वो रेट जिसमें हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट करते हैं फॉरेन करेंसी में, तो उस रेट को हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट. जैसे एग्जांपल इनने दिया भी है, इफ़ वी आर पेइंग डोमेस्टिक करेंसी फॉर बाइंग फॉरेन करेंसी, $1 खरीदने के लिए आप 50 रुपीज़ दे रहे हो, सो दिस इज़ कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. The foreign exchange rate is the rate at which we are changing the our country currency with other currency. It is also called external value of domestic currency. इसका दूसरा नाम क्या है, external value of domestic currency. So this much is clear to everyone. So now next topic is flexible and foreign exchange rate. मीन्स कितने टाइप के रेट होते हैं हमारी करेंसी में. तो हमारी कंट्री में 3 टाइप के रेट होते हैं. एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक होता है मैनेज फ्लोटिंग रेट. तो ये रेट्स पहले चलते थे, अब हमारी कंट्री में जो रेट चलता है उसको हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट. तो कौन से पहले चलते थे, अब कौन सा चल रहा है, सो दैट डीप डिस्क्रिप्शन आई एम गिविंग नाउ. सो फर्स्ट दे हैव एक्सप्लेन यू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फ्लेक्सिबल बाय द नेम ओनली इट इज़ क्लियर, जहाँ पे रेट फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होता रहता है डेली. रेट कोई एक सेम नहीं है, डेली रेट चेंज होने वाला है, उस रेट को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्री एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट और पार एक्सचेंज रेट. दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ वन rate only, that is flexible exchange rate. Simple one example I am giving. जैसे आप रोज़ शेयर मार्केट देखते हो, शेयर मार्केट अगर नहीं देखते तो न्यूज़पेपर या इतनी नॉलेज तो सबको है कि डेली हमारी कंट्री में करेंसी चेंज होती है.
कल शेयर अगर 70 रुपीज़ का है तो आज शेयर 69 या 70.1, कुछ पॉइंट्स में ही चेंज हो, मगर वैल्यू आपकी रोज़ चेंज होती है कि नहीं होती है शेयर की वैल्यू चेंज? तो करेंसी की वैल्यू रोज़ चेंज, शेयर की वैल्यू रोज़ चेंज होती है। तो वो जो शेयर की वैल्यू रोज़ चेंज होती है तो उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो ये जो रेट रोज़ चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग होता है? डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। डेली फॉरेन कंट्री की डिमांड और सप्लाई चेंज होती रहती है। तो जब डेली फॉरेन कंट्री की डिमांड और सप्लाई चेंज होती है तो उसके कारण डेली हमारे रेट्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, आपकी दुकान है, आपकी दुकान में अगर कस्टमर्स ज़्यादा आ जाएंगे और आपके पास स्टॉक लिमिटेड है तो आप रेट उस दिन बढ़ा दोगे, और अगले दिन अगर स्टॉक आपके पास है मगर कस्टमर्स ही नहीं आ रहे हैं तो तुम अट्रैक्ट करने के लिए रेट कम कर दोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? सो वो रेट हमने कैसे फिक्स करा? डिमांड और सप्लाई को देखकर, हमारे पास कितनी सप्लाई और हमारे पास कितनी डिमांड हो रही है। तो ऐसे ही हमारी कंट्री में शेयर्स की भी रेट चेंज होता है डिमांड और सप्लाई के कारण। इसीलिए बुक में देखो क्या कहा है, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज़ डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। जो कैसे निकाला जाता है? सप्लाई और डिमांड फोर्सेस के अकॉर्डिंग। किस मार्केट में? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। एक मार्केट होती है जहाँ पे बस फॉरेन करेंसी की डीलिंग होती है, वो मार्केट ये रेट निकालती हैं, हम और तुम ये रेट नहीं निकालते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट, क्योंकि यहाँ पे किसी का इंटरफेरेंस नहीं हुआ, डिमांड और सप्लाई देखी, उसके अकॉर्डिंग जो रेट आया उसको फिक्स कर दिया। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री एक्सचेंज रेट और फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन द इंटरनेशनल मार्केट। द एक्सचेंज एट विच demand for foreign currencies equals to the supply is called par rate of exchange और equilibrium rate of exchange। तो अगर दोनों चीज़ें सेम है, जितनी आपने डिमांड करी उतनी ही सप्लाई है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहेंगे, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहेंगे, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहेंगे और फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहेंगे, इवन वेरिएबल रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। तो पहले मीनिंग समझ में आ गया, व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कोड से वैसे हट गया है, बट शॉर्ट नॉलेज देना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन तो बन सकते हैं, इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। लास्ट ईयर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, जहाँ डिमांड कैसे स्लोप होती थी? डाउनवर्ड, और सप्लाई कैसे स्लोप होती थी? अपवर्ड। तो वैसे ही यहाँ पे भी देखो, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी कैसे स्लोप हो रहा है? डाउनवर्ड, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी डिमांड क्या होती जाए प्राइस कम होती जाएगी तो डिमांड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होगा और सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी का कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोप होगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर सप्लाई भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों डायग्राम में किसी को कोई डाउट है? नो। सो डिमांड कर्व इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट। डिमांड को क्या कहा जाएगा? इम्पोर्ट कर्व। और सप्लाई को क्या कहा जाएगा? एक्सपोर्ट। तो आपको अब ये याद रखना है क्योंकि आप फॉरेन करेंसी पढ़ रहे हो। तो डिमांड कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, दैट मीन्स इम्पोर्ट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ड्यू टू व्हाट इज द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग? प्राइस इंक्रीजेज देन डिमांड मूविंग अपवर्ड। हमें अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो प्राइस डिक्रीजेज। R1, अच्छा इनने ये चीज़ ली है, R1 से R2 कर दिया है, ओके बट ये उल्टा जा रहा है हमारा। डाउनवर्ड स्लोपिंग मीन्स एज प्राइस डिक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, ये चीज़ होती है। सॉरी, प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज। जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है डिमांड क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, इसीलिए वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोइंग। और सप्लाई कर्व में क्या होता है? इस डायग्राम को सुधार लो। डिमांड कर्व में जहाँ R2 लिखा है वहाँ R1 लिखो और R2 नीचे लिखो। और जहाँ सप्लाई कर्व सही है, पहले R1 डिमांड थी, जब प्राइस R1 थी तो डिमांड 100 थी, सप्लाई थी, और जैसे ही R2 डिमांड हुई
प्राइस हुई तो सप्लाई 200 कर दी, मतलब प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ गई। और यहाँ जब R1 जहाँ R2 है वहाँ R1 कर लो, ताकि जब R1 प्राइस थी तो आपकी डिमांड 100 थी, जैसे ही प्राइस R2 हुई मतलब नीचे आई तो आपकी डिमांड बढ़ गई। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों में सेम है और गलत दिया है डायग्राम। आया अब ये समझ में कि नहीं आया? So now we are starting a new topic, equilibrium rate of exchange rate or par rate of exchange rate. Equilibrium rate of exchange rate or par rate of exchange rate means where demand and supply both are equal. मतलब इसी पॉइंट से समझ में आ जा रहा है, मतलब हमें एक ही ग्राफ में डिमांड का कर्व भी बनाना है और सप्लाई का कर्व भी बनाना है। डोंट टर्न द पेज, ओनली टेल मी डिमांड कर्व कहाँ जाएगा, नीचे की ऊपर, and supply curve will be moving, and where they both intersect, जहाँ पे वो दोनों intersect होंगे उस point को हम क्या कहेंगे, equilibrium point. This last year only you have studied, पढ़ा है ना? So देखो टर्न करो पेज, वही दिया है, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट हो गए उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो रेट आज का रेट हो जाएगा शेयर मार्केट का। तो ऐसे शेयर मार्केट में रेट निकाला जाता है। पहले देखते हैं डिमांड कितनी हो रही है, सप्लाई कितनी हो रही है, और जहाँ दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे उस रेट को इंटरसेक्ट पॉइंट बना दिया जाएगा और वो रेट आज का रेट फिक्स हो जाएगा। बट देखो अब डायग्राम में आर आपकी एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर आपको R1 दिया है। तो R1 का मतलब अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो जब प्राइस बढ़ी तो देखो तुम्हारा सप्लाई कर्व बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्राइस कम हुई हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। ये चीज़ समझ में आई? आपको इतना मालूम है कि ये हमारा कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है जिसको हम DT कहते हैं। फिर हमारा सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप होता है जिसको हम SS कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है जिसको हम E पॉइंट से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में यहाँ जो प्राइस होगी वो हमारी, मान लो अगर 50 रुपीज़ है तो ये हमारी आज की फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गई। इस समय डिमांड भी मान लीजिए 50 रुपीज़ है, तो जब प्राइस 50 है, डिमांड और सप्लाई दोनों 50 हैं, तो ये रेट क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। पहले इतना समझ में आया? अब अगर मैं कह रही हूँ प्राइस इंक्रीज़ हुई, प्राइस 50 से 60 हो गई, तो जब प्राइस 50 से 60 हुई तो हमारा ये पॉइंट हो रही है। इधर देखो सप्लाई आगे है, डिमांड पीछे है, सप्लाई कर्व आगे है, डिमांड कर्व पीछे है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेस सप्लाई। क्या कहते हैं हम इस सिचुएशन को, एक्सेस सप्लाई। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ़ प्राइस इंक्रीजेस फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़, इसको अभी मैं एक चीज़ और समझा रही हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट हो गया है। ये क्या कहलाता है, डेप्रीशिएट। पहले आपको $1 50 रुपये में मिल रहा था, अब $1 60 रुपये में हो गया, तो बताओ एप्रीशिएट हुआ कि डेप्रीशिएट हुआ? नहीं, देखो पहले आप 50 रुपये दे रहे थे, आपको $1 मिल जा रहा था, और अब आपको 60 रुपये देने पड़ रहे हैं, तब जाकर आपको $1 मिल रहा है। तो ये आपके लिए लॉस है कि गेन है? तो इसको कहा जाता है डेप्रीशिएट। इसको क्या कहा जाता है, डेप्रीशिएट। तो हमें लगता है कि हमारी फॉरेन करेंसी वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी कंट्री को फ़ायदा है, नहीं, ये हमारी कंट्री को घाटा है, क्योंकि जो हम $1 में अमेरिका से सामान खरीद रहे हैं हम उतना ही खरीद पाएंगे, बट हमें अब 50 रुपये की जगह क्या देना पड़ रहा है, 60 रुपये देने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास से तो ज़्यादा इंडियन करेंसी जा रही है और हमें सामान तो अमेरिका से उतना ही मिल रहा है, तो इट इज़ अ डेप्रीसिएशन फॉर आवर कंट्री। बट अगर ये हो जाए 50 से आपको 40 रुपये देने पड़े $1 के लिए, तो ये हमारे लिए एप्रीसिएशन बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, एप्रीसिएशन। आया समझ में डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन क्या होता है?
क्योंकि आगे अब हमारा यही टॉपिक आ रहा है, तो ये हम आपको पहले ही समझा दे रहे हैं। अब मुझे आप लोग बताना, मैं आपको बता रही हूँ। $1 पहले हमारा 70 रुपये का था, अब हमारा $1 75 का हो गया है। सो इट्स अ डेप्रिसिएशन और एन एप्रिसिएशन। It's a depreciation. We have to pay more to get $1 only. But if I am saying $1 is now for 60 rupees, so it's a depreciation or an appreciation. तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। जो हमें दिख रहा है वो चीज़ है नहीं, ऑपोजिट होती है। अगर हम ज़्यादा दे रहे हैं मीन्स डेप्रिसिएशन, अगर हम कम दे रहे हैं तो एप्रिसिएशन। कंसेप्ट समझ में आया क्यों? ओके, सो हेयर नाउ बैक टू योर टॉप ग्राफ। अभी आपका 50 रुपीज़ क्या था? इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब अगर हम कह रहे हैं कि आपकी करेंसी का रेट बढ़ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट से आपकी करेंसी बढ़ गई, तो जब इक्विलिब्रियम पॉइंट से आपका रेट इंक्रीज़ हो जा रहा है, मतलब हम इसको इंक्रीज़ की जगह कहें आपकी करेंसी डेप्रीशिएट हो जा रही है, तो जब आपकी करेंसी डेप्रीशिएट होती है तो किस चीज़ पे इफ़ेक्ट आता है? तब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है और इम्पोर्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये आंसर देना पड़ेगा। व्हेन करेंसी डेप्रीशिएट, सो एट दैट टाइम आवर एक्सपोर्ट इज मोर एंड आवर इम्पोर्ट इज लेस। Clear this concept or not? Now you have to give me the answer. If I am saying your currency appreciate, now 50 to 40 हो गई है. So when your currency appreciate, what will be on export and import? Which will increase, which will decrease? क्या increase हो रहा है? So demand is called as import, and supply is called as export. So when your currency appreciate, demand will import will increase and export will decrease. Clear this concept now? These are the questions it will come in your exam. Clear this concept? Okay? So this you can write anywhere. When currency depreciates, export will increase, import will decrease. When currency appreciate, import will increase and export will decrease. And point of equilibrium where demand and supply means export and import both are equal. So with the help of this diagram, we have cleared 3 topics. Clear these things now? Okay, so now move to your next topic, that is impact of change or increase in demand and supply. First I am explaining, then I am drawing the graph and explaining. So impact of change or increase in demand and supply का मतलब क्या होता है? Whenever your demand or supply increase, मतलब डिमांड और सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या इफेक्ट होगा फॉरेन करेंसी में? तो दोनों को एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करना है, एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी और एक चीज़ चेंज होगी। तो इसमें इन्हें यही कहा है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी ऑकर्स व्हेन मोर ऑफ इट इज़ डिमांडेड एट इज एग्जिस्टिंग प्राइस। तो इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी तभी कहलाएगी जब चीज़ें आप ज़्यादा डिमांड करोगे सेम प्राइस पे। जैसे 50 रुपीज़ का गुड्स है तो 50 रुपीज़ में पहले आप 50 गुड्स खरीदते थे, अभी भी गुड्स 50 रुपीज़ का है मगर अब उसकी डिमांड 60 गुड्स की हो गई है, 70 गुड्स की हो गई है। सो व्हेन डिमांड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ओनली डिमांड इंक्रीजेस, सो दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग रेट फॉर एन इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर कंसेप्ट? So now we are starting our fixed exchange rate. Fixed exchange rate is that exchange rate which is maintained by the government. आपने अभी पढ़ा था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होता है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग फिक्स होता है, मगर फिक्स एक्सचेंज रेट जो है ना इससे पहले चलता था। जो कौन फिक्स करता था? गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स कर दिया कि आज 50 रुपीज़ चलेगा, आज 60 रुपीज़ चलेगा, तो वही रेट चलेगा। तो द गवर्नमेंट में सेट इट
higher or lower than the equilibrium exchange rate determined by the market forces of supply and demand. तो वो अपने हिसाब से मार्केट की डिमांड और सप्लाई को जैसा करना चाहती थी उस हिसाब से वो रेट फिक्स करती थी. तो फिक्स एक्सचेंज रेट इज द रेट which is maintained and fixed by the government. Clear this thing? So when exchange rate is set higher than the equilibrium rate, तो देखो R, अब डायग्राम जो आपको दिया है वो R जो है वहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं, तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम है. अब अगर एक्सचेंज रेट उससे ऊपर हो गया, R1 हो गया, तो उस समय क्या हो जाता है, पहले भी मैंने पढ़ाया था, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाती है और इम्पोर्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो यहाँ डायग्राम के पास लिख लीजिए, व्हेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस सो एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड इम्पोर्ट विल डिक्रीज, विच इज कॉल्ड एज एक्सेस सप्लाई. उसको क्या कहा जाएगा, एक्सेस सप्लाई. और उस टाइम पे जिसको अभी आपने बोला था डेप्रीसिएशन, तो फिक्स एक्सचेंज रेट के टाइम पे उस मेथड को कहा जाता था डीवैल्यूएशन. तो डीवैल्यूएशन मीन्स मोर मनी इज गोइंग आउट टू परचेज $1. सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जिसको आप डेप्रीसिएशन कहते हो, फिक्स एक्सचेंज रेट में उसको हम डीवैल्यूएशन कहते हैं. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जिसको आप एप्रीसिएशन कहते हो उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, रीवैल्यूएशन. दोनों के मीनिंग सेम है, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग रेट फिक्स होता है, यहाँ गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है. वो फ्लेक्सिबल का पार्ट है, ये फिक्स्ड का पार्ट है. बताइए किस किस को ये चीज़ें क्लियर हो गई, व्हाट आई हैड सेड जस्ट नाउ. व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डीवैल्यूएशन. देखो $1 50 का है, $1 70 का हो गया, मतलब हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इसी को हम डीवैल्यूएशन भी कहते हैं, इसी को हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं. मगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे रेट फिक्स होता था, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग. तो जहाँ पे रेट डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग फिक्स होती है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, तो उस सिस्टम में इसको नाम दिया गया है डेप्रिसिएशन. और फिक्स एक्सचेंज रेट में रेट कौन फिक्स करके देता है, गवर्नमेंट. तो जहाँ गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है, डिमांड और सप्लाई का रोल नहीं चलता, तो वहाँ पे भी जब ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, मीन्स हमें ज़्यादा वैल्यू देनी है $1 के लिए, तो उस टाइम पे उसको कहा जाता है डीवैल्यूएशन. अब आया समझ में कि नहीं आया? So now it is clear properly. So now next topic they have given just opposite to that. If currency is foreign currency value decreases, means now instead of 50 you are paying 30 rupees to purchase $1. But this rate was made by the government. So it is called under fixed exchange rate as revaluation, and under flexible exchange rate it is called as appreciation. तो फिर से सेम चीज़ है, बस मेथड अलग है और बनाने वाला अलग है. सो समझ में आया? अगर करेंसी वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है, सो व्हाट इज हैपनिंग, रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन किस मेथड में होगा? Revaluation will be in which method? I want the name under which method revaluation will be happen. Under fixed, okay, under fixed exchange rate it will be called as revaluation. Who is fixing this rate? Government. Good. And appreciation will be called under which method? Flexible exchange rate. And here who is fixing this rate? So now concept is clear to everyone. Now implication of revaluation. Implication of revaluation क्या होता है, and implication of devaluation also is left. तो बस आज हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, बाकी कल हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो इट्स योर लास्ट टॉपिक टुडे. सो
डीवैल्यूएशन लेड्स टू एक्सेस सप्लाई। डीवैल्यूएशन अभी आपने देखा, ग्राफ में देखो, डीवैल्यूएशन से क्या होता है, एक्सेस सप्लाई होती है फॉरेन करेंसी की। सो सप्लाई इज मोर, डिमांड इज लेस, दिस विल लेड टू फॉल इन एक्सचेंज रेट, जिसका मतलब है हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, कम। तो जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। इन विच सिचुएशन द वेरी पर्पस ऑफ डिवैल्यूएशन वुड बी आर लॉस्ट, मतलब हमारा लॉस होने लगता है। देयरफॉर इट्स बिकम एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू एब्जॉर्ब द सप्लाई बाय वे ऑफ इट्स ओन परचेज। तो सप्लाई रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, खुद चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं इंटरनेशनल मार्केट से, डिमांड बढ़ानी पड़ती है गवर्नमेंट को। अगर हम बस सप्लाई करते जाएंगे कम रेट में तो हमारी कंट्री लॉस में चली जाएगी। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को खुद खरीदना पड़ता है, डिमांड बढ़ानी पड़ती है। तो जब डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो हम इस डेप्रिसिएशन की सिचुएशन से बच जाएंगे और हमारी कंट्री सेफ हो जाएगी। आ गई बात समझ में बेटा? इम्प्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन फिर से समझा रही हूँ, उसको ऑपोजिट है, ध्यान से सुन लो। रीवैल्यूएशन से क्या होता है, एक्सेस डिमांड होती है फॉरेन करेंसी की इंटरनेशनल मनी मार्केट में। जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो हमारे पास से क्या होता है, फॉरेन करेंसी आती हैं एंड सप्लाई आर नॉट रिलीज, हमारा माल नहीं बिक रहा है। सो देयर में अमेर्ज ब्लैक मार्केटिंग, तो इसके कारण ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है और सेल एंड परचेज ऑफ डॉलर्स चालू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए फिर गवर्नमेंट को एक रेट फिक्स करके खुद परचेजिंग और सेलिंग करनी पड़ती है, जिससे हम लोग इस सिचुएशन से बच सकें। तो ये सिचुएशंस हैं इम्प्लीकेशंस। Keep studying.